चलिए आज क्लास शुरू कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स। चलिए इसी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होता है तो इसके बारे में बताया गया था। इट इज द इमेजिनरी लाइंस, इट इज द इमेजिनरी लाइंस in which we imagine that all the electric lines are always emerge from any positive charge body and terminate on any negative charge body. It is the imaginary, it is the imaginary lines, it is the imaginary lines which always emerge, which always emerge from any positive charge body and terminates on the any negative charge body in radial direction, in radial direction। चलिए इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। पहला प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज emerges from any positive charge body and terminates on the any negative charge body। It always emerges from any positive charge body and terminates on any negative charge body। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। If electric lines are straight and parallel to each other, then field is uniform।
and if electric lines are curved and non-parallel to each other, then fields are non-uniform. तो ये हो गया दूसरा पॉइंट. नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी vector is along the electric lines direction. Electric field intensity vector is along the electric lines direction. If lines are straight, and if lines are any curve, then it is along the tangent direction. तीसरा पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर उसी लाइन के अलॉन्ग होगा, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कोई कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा. चलिए फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is decreased in direction of electric lines. इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है. फिफ्थ में, इलेक्ट्रिक लाइंस आर always perpendicular to the equipotential body. Equipotential body. Electric lines are always perpendicular to the equipotential body. Sixth number, two electric lines never intersect to each other. Two electric lines
never intersect to each other. Two electric lines never intersect to each other. 7. If number of electric lines of forces, if number of electric lines of forces passing through any cross section area, any cross sectional area, if number of electric lines of forces passing through any cross sectional area is more, then if number of electric lines of forces passing through any cross sectional area is more, then the value of electric field, intensity vector is more. अगर दो एरिया है, दोनों सेम है और दोनों एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा होगा वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. नंबर 8, if total number of electric lines of forces is intercepted by any uncharged conducting body. If total number of electric lines of forces is intercepted by any uncharged conducting body, then the value of induced charge, is same as that of the original charge body. Is that of the original charge body. And if the total electric lines emerging from any charge body, and if the total electric lines emerging from any charge body is not
totally intercepted, is not totally intercepted, is not totally intercepted, then the value of induced charge then the value of induced charge is less than the original charge body. चलिए, ये था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी। एक एक करके पढ़ते हैं, देखिए इसको समझिए क्या क्या है, फिर हम एप्लीकेशन इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उसको समझ सकते हैं। चलिए, पहला लाइन का प्रॉपर्टी क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आके टर्मिनेट करेगा, तो ये तो पढ़े ही हम लोग। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइन अगर स्ट्रेट है और पैरेलल है तो ये ऐसा हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर इलेक्ट्रिक लाइन कर्व है और नॉन पैरेलल है तो ऐसा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तीसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस डायरेक्शन। कब? जब इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट रहेगा तब, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर किसी पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। फोर्थ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। फिफ्थ में है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल बॉडी। सिक्स में है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे से कट नहीं करेगा। सेवंथ में है, अगर सेम एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करे तो वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। एट में है, अगर टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कोई अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी टोटली इंटरसेप्ट करता है, टोटली उसको कवर करता है, तो उस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो ओरिजिनल चार्ज के बराबर होगा। वही लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल चार्ज बॉडी, and if the total electric lines emerging from any charge body is not totally intercepted, then the value of induced charge is less than the original charge body। चलिए, आ रहा है समझ में? अब इसका हम लोग एक एक करके बहुत सारा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है, समझना। चलिए, पहला एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन ये है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे
ये है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। दूसरा नेगेटिव चार्ज बॉडी से कैसे? ये है नेगेटिव चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक लाइंस देखा जाए कैसे, इसमें आके टर्मिनेट करता है, खत्म होता है। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल। अब चले तीसरा एप्लीकेशन। आ रहा है समझ में दोनों एप्लीकेशन? ये तो बहुत आसान है, ऐसा पढ़े भी थे हम लोग। अब चलिए तीसरा एप्लीकेशन। तीसरा अगर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक ही साथ मिल जाए तो कैसे करेंगे? चलिए यही है दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये है प्लस क्यू, ये है प्लस। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे? अब देखा जाए बीच में एक सेंट्रल लाइन खींचते हैं। बीच में क्या खींचते हैं? एक सेंट्रल लाइन। ये भी सेंट्रल लाइन कैसा है? तो डॉटेड है। ये भी सेंट्रल लाइन कैसा है? चलिए अब लाइंस दिखाते हैं कैसा। यहां से एक लाइन इधर निकल रहा है, दूसरा लाइन इधर निकल रहा है। लाइंस कैसा है? ये जो लाइंस इधर निकल के जाना चाहता है, इसको पॉजिटिव वाला दूसरा ये जो निकलेगा, देख सकते हैं ऐसे। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कैसे निकलता है? हर डायरेक्शन में रेडियली। तो यहाँ जो ये निकल के निकलना चाहेगा, दूसरा उसको रिपेल कर देगा, तो ये इस तरफ से बेंड कर जाएगा। यहाँ भी दूसरा चार्ज से निकलेगा तो पहला वाला चार्ज उसको रिपेल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेंड कर देगा। यहाँ से निकलेगा तो कुछ ऐसे, यहाँ से निकलेगा तो कुछ, यहाँ से निकलेगा तो कुछ ऐसे। अच्छा, जैसा इधर फिगर है वैसा इधर भी। दोनों तरफ फिगर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दोनों तरफ जो है फिगर क्या होगा? सिमेट्रिक। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 4। नंबर 4, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दोनों का चार्ज अलग अलग है, ये ज्यादा है ये कम है, तब क्या होगा? दोनों का चार्ज बॉडी क्या है? अलग अलग है, एक ज्यादा है और एक कम होगा, तब कैसा लाइंस होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस देखिए ऐसे निकल रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस, एक पॉइंट होगा जहां हम दोनों दिखा रहे हैं, यहाँ पे फील्ड 0 होगा, तो ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। रेड वाला इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है। अब आइए देखिए कैसे। यहाँ से लाइंस निकलेगा, ये इधर चला गया, तो इस तरीके से ये लाइंस निकल रहा है।
पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगा। दूसरा, यहां से ये निकल के ऐसे, यहां से ये निकल के ये इस तरीके से, ये बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज से ज्यादा लाइंस निकलेगा। ज्यादा चार्ज है तो उससे लाइंस क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। तो ये लाइंस कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, एक है पॉजिटिव क्यू और दूसरा है पॉजिटिव 2q। थर्ड वाले एग्जाम्पल में दोनों का चार्ज सेम था, तो एकदम बीच के वो सिमेट्रिक था। इसमें जो देखा जाए फोर्थ में रेड लाइन के लॉन्ग, डॉटेड लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है फिगर, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल नहीं है। नेक्स्ट नंबर अब चलेंगे 5। नंबर, एक चार्ज अगर पॉजिटिव है और एक चार्ज अगर क्या है, नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा, तो देखा जाए कैसा, यहां से लाइंस निकल रहा है, यहां पे आके टर्मिनेट कर रहा है। दूसरा लाइंस ये जो निकल रहा है इसको ये खींच ले रहा है, दूसरा लाइन से ये जो निकल रहा है इसको ये खींच रहा है, ये जो निकल रहा है इसको भी खींच रहा है, ये जो निकल रहा है इसको भी खींच रहा है, ये जो निकल रहा है इसको भी खींच रहा है। चलिए, ये है लाइन, ये ये लाइंस जो आ रहा है इसको भी ये खींच रहा है, हर जगह आके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से हर जगह लाइन निकल रहा है। यहाँ भी मिड पॉइंट के अबाउट ये जो है वो सिमेट्रिक, मिड पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब आते हैं नंबर, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज। एक को ज्यादा ले लेते हैं और इसको कम लेते हैं। चलिए अब देखा जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पे लाइंस आके टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज छोटा है, नेगेटिव चार्ज छोटा है तो वहां पे जो लाइंस आके टर्मिनेट कर रहा है उसका नंबर कम है। पॉजिटिव चार्ज बड़ा है इसलिए
यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहा है, और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। ये आया हुआ है जेई 2010 में, ये आया हुआ है जेई 2010 में। चलिए नेक्स्ट नंबर चले, कौन सा? 7। तीन चार्ज है देखा जाए। चलिए देखिए, चलिए देखा जाए, तीन पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तीनों कहाँ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक लाइंस खींचने जा रहे हैं कैसे। चलिए अब देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है रेडियली तो निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन से निकल रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से आगे जा रहा है तो ये यहां से लौट जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से आगे जा रहा है तो ये यहां से लौट, ये भी आगे जाके ये लौट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस है ये रिटर्न हो जाए आगे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रहा है? निकल रहा है, लेकिन अपने डायरेक्शन में रिटर्न हो रहा है। ये जो रेड वाला लाइन दिखाया गया है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीनों क्या होगा? एक दूसरे के सिमेट्रिक होगा, तीनों क्या होगा? एक दूसरे के सिमेट्रिक होगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से लाइन से निकल रहा है, लेकिन बाकी जो दो पॉजिटिव चार्ज है उसको इसके तरफ भेज देगा, इसके इलाके में भेज देगा, तो ये इधर लौट के आ जा रहा है।
इसलिए रेड लाइन से जो 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी में अपने अपने एरिया में तीनों का जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये आया हुआ है JE 2001, ये आया हुआ है JE 2000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8। ए नंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसा, दो पॉइंट है, ये है 1 और ये है 2। अब आपको बतलाना है फील्ड का वैल्यू कहाँ ज्यादा है, 1 पे या 2 पे। पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ ज्यादा है, 1 पे या 2 पे, यही बतलाना है। फील्ड इक्वल पोटेंशियल 1 पे। क्या देखा जाए, सेम एरिया लेते हैं दोनों जगह। क्या लेते हैं, सेम एरिया लेते हैं। तो सेम एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज सेम ही पास कर रहा है या अलग अलग, सेम पास कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो 1 से 2 के डायरेक्शन में है लाइंस, तो 1 पे ज्यादा होगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। बी पार्ट में, कौन सा पार्ट में, बी पार्ट में। चलिए 2 पॉइंट है 1 और 2, क्या है, 2 पॉइंट है 1 और 2। 1 पॉइंट ऐसा दिख रहा है, 2 पॉइंट ऐसा दिख रहा है। सेम एरिया से सेम ही देखा जाए, सेम एरिया लिए हैं दोनों जगह, क्या दोनों जगह सेम एरिया से सेम ही लाइंस पास कर रहा है या अलग अलग, अलग अलग। तो अलग अलग पास कर रहा है ना। 1 जो है पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे सेम एरिया से ज्यादा लाइंस पास कर रहा है, इसलिए 1 पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इसलिए 1 पे ज्यादा होगा पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 9। ये है चार्ज बॉडी, यहाँ पे कोई कंडक्टिंग बॉडी है, मेटल है। चलिए अब इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होगा, यहां से लाइंस ऐसे, यहां से लाइंस ऐसे, हर तरफ लाइंस निकलेगा। यहां से क्या होगा, हर तरफ लाइंस निकलेगा। लेकिन यहां देखा जाए, क्या ये टोटल लाइन को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा।
नेगेटिव चार्ज का वैल्यू -q, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू +q। अब आगे लाइंस कैसा है तो देख सकते, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगा। क्या देखा जाए, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रहा है, मेटल पे आके टर्मिनेट कर रहा है, मेटल के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या बतलाना है आप, जो टोटल लाइन है वो क्या ये इंटरसेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू से जो टोटल लाइंस निकल रहा है, कंडक्टिंग बॉडी उसको कवर नहीं कर रहा, पूरे उसको कवर नहीं कर रहा है, पूरे हर तरफ से उसको बॉन्डेड नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। 8वां पॉइंट यही था, अगर किसी चार्ज बॉडी से जो भी लाइंस निकल रहा है उसको कोई कंडक्टिंग बॉडी उसको क्या कर रहा है, टोटली इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, उस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू होगा वो कम होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 10। अगर यहाँ चार्ज बॉडी है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, कैसा बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, ये चार्ज है, ये है कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग सेल क्या है, कंडक्टिंग सेल है। अब यहां से हम दिखाने जा रहे हैं फिर यहां से आगे लाइन निकल, चलिए अब देखिए चार्ज कहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है सरफेस के अंदर वाले पार्ट पे, मेटल सरफेस के अंदर वाले सरफेस पे -q, मेटल के बाहर वाले बाउंड्री पे, मेटल के बाहर वाले बाउंड्री पे ये प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। और ये लाइन निकल रहा है, यहाँ देखा जाए एक चार्ज बॉडी है प्लस कैपिटल क्यू, सेंटर पे रखा हुआ कंडक्टिंग सेल के, वहां से लाइंस निकल रहा है, लाइंस निकल रहा है तो क्या हो रहा है, मेटल सेल के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज। प्लस चार्ज से देखा जाए यहाँ से लाइंस निकल रहा है और यहाँ आके टर्मिनेट कर जा रहा है, फिर यहाँ से लाइंस निकल जा रहा है और ये जाके आगे बढ़ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज से आके टर्मिनेट करता है, फिर पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, आगे नेगेटिव चार्ज से जाके टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे देखा जाए जो स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू है इसमें क्या रिलेशन होगा, तो इसमें जो रिलेशन होगा वो इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज बॉडी से जो भी टोटल लाइंस निकल रहा है, किसी भी चार्ज बॉडी से जो भी टोटल लाइंस निकल रहा है, इसको क्या कर रहा है, टोटली इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको क्या कर ले रहा है, टोटली इंटरसेप्ट कर ले रहा है, इसलिए यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू सेम होगा। चलिए था 10। अब आइए नंबर 11।
ये है कंडक्टिंग बॉडी, ये है क्या, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। ये है कंडक्टिंग स्फेरिकल। अब देखिए लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे, यहां से लाइन्स आ रहा है ऐसे, यहां से लाइन्स आ रहा है, लाइन्स स्ट्रेट वे में पास कर जाएगा। अब यहां से लाइन्स ऐसे है, यहां से लाइन्स, ये है सेंटर, सेंटर से पास करता हुआ आ रहा है, तो ये स्ट्रेट वे में पास करेगा। अब जो लाइन्स यहां आ रहा है देखिए, ये देखिए परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन्स है अपने आप को बेंड करेगा, ये लाइन्स अपने आप को बेंड करेगा, तभी ये परपेंडिकुलर होगा, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। ये अब परपेंडिकुलर, तो ये कंडक्टिंग बॉडी है, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स आएगा इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली फॉल करेगा। इक्विपोटेंशियल बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होता है वो परपेंडिकुलरली फॉल्स करता है या टर्मिनेट करता है। तो ये है इलेक्ट्रिक लाइन इस तरीके से। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का नाम लिख देना है। ये आया हुआ है JEE 1996 में आया था, 11 के बाद 12। ये देखा जाए स्फेरिकल बॉडी है, कैसा बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल कंडक्टिंग, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है। यहाँ एक चार्ज है, चार्ज सेंटर पे नहीं है, चार्ज यहाँ। अब देखिए लाइंस कैसे बदलता है, यहाँ से लाइंस ऐसे निकलेगा, यहाँ से लाइन, ये लाइंस निकलेगा, ये परपेंडिकुलर होने के लिए बेंड कर रहा है। ये यहाँ परपेंडिकुलर होने के लिए बेंड करता है, फिर यहाँ से लाइंस इधर निकलेगा, यहाँ पे चार्ज भी इंड्यूस्ड हो रहा है, ये अंदर हो रहा है माइनस चार्ज। ये है प्लस चार्ज बॉडी, ये है माइनस चार्ज, और ये है फिर से चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। ये जो लिखा गया है ये है स्मॉल q,
चलिए इलेक्ट्रिक लाइंस आप देखें, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहा है। अगर सेंटर पे चार्ज रहता तो कैसे होता था, तो देख लीजिए फिगर में, ऐसा होता था। अगर सेंटर पे चार्ज रहता था तो ऐसा होता था। यहाँ पे ये प्लस क्यू है, यहाँ पे ये माइनस क्यू है, यहाँ पे ये प्लस क्यू है। टोटल लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसलिए जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू ओरिजिनल चार्ज के बराबर होगा। लेकिन यहाँ देखा जाए, यहाँ पे जो होगा चार्ज, ये जो स्मॉल क्यू होगा यहाँ भी, ये क्यू के बराबर होगा। लेकिन अंदर वाला लाइन क्या है, इस तरीके से बेंड कर गया है। बाहर वाला लाइन लेकिन स्ट्रेट है, और ये आया हुआ है जेई 2000। दोनों में डिफरेंस समझिए, इस फिगर 12th में और इसके पहले बनाया गया 10th में, दोनों में कुछ डिफरेंस है। एक के अंदर में सेंटर पे चार्ज है, दूसरे में सेंटर पे चार्ज नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर अब चलते हैं, 30 नंबर। नेक्स्ट नंबर 30 नंबर। चलिए देखिए क्या है। एक है सिलेंडर, सिलेंडर को किधर से देख रहे हैं, तो सामने से देख रहे हैं। चलिए यही सिलेंडर है, इसको इधर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो लेंथ वाइज दिखेगा, इधर से देखेंगे तो एक ऐसा सर्किल दिखेगा। अब देखा जाए इस पे चार्ज कहाँ है, ये है सेंटर, ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले पे है नेगेटिव चार्ज। सिलेंडर के आधा सरफेस पे है पॉजिटिव और आधा सरफेस पे है नेगेटिव, ये है सिलेंडर। अब देखा जाए कैसा होगा इस पे इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस देखे किसने, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट करेगा। यहां से तो देखिए लाइंस निकलेगा, यहां से निकल के ये आके टर्मिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव वाला अपने तरफ खींच लेगा। यहाँ से फिर निकलेगा, ये आके खींच लेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये आके खींच लेगा, यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज जहां पे है वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट कर रहा है। ये कैसा सिलेंडर है, तो इनफाइनाइट सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर। चलिए तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है।
ये आया हुआ है जेई 2015, ये आया हुआ है 2015